Hello everyone. So today we will going to start our new chapter and the name of the chapter is The Village School. Let's begin the chapter. Chapter 11, The Village School. Now, the theme stream of the chapter. In a village in India, a boy named Tota Ram was initially scared of school but became curious when his friends started attending. Secretly, he began going to school and learned to read and write. When he discovered his father was about to be cheated by a moneylender, Totaram spoke up, using his newfound knowledge to help his family. His bravery saved his father from a bad deal, showing that education can bring unexpected benefits. So, in this story, there is a boy जिसका नाम था तोताराम. वो एक गांव में रहता था और उसको स्कूल से बहुत डर लगता था. ही इज वेरी मच स्कैर्ड ऑफ स्कूल. बट वो बहुत ही क्यूरियस था जब उसके फ्रेंड ने स्कूल अटेंड करना शुरू करा. तो सीक्रेटली वो भी जाना शुरू कर दिया उसने और वहां पे उसने पढ़ना लिखना सीखा. जब उसने डिस्कवर्ड करा अपने फादर को कि फादर ने को चीट किया गया है किसी मनी लेंडर ने धोखे से, तो तोताराम बोल पड़ा. तो उसने जो जो नई चीजें सीखी, अपनी नई नई नॉलेज उसने गेन करी, तो उसके लिए वो बोल पड़ा. तो उसकी उस बहादुरी की वजह से उसके फादर को उसने बचा लिया उस बैड डील से. जो उससे पैसे हड़पना चाहता था वो नहीं कर पाया. एंड ही सेव्ड हिज फादर फ्रॉम बैड डील. तो उसने ये शो कर दिया कि एजुकेशन से भी बहुत सारे आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं. नाउ द कैरेक्टर्स इन स्पॉटलाइट. Totaram, curious boy who learns to read secretly and bravely helps his family. Bala, Totaram's friend, excited about the new village school. Totaram's mother manages household tasks and cares for her children. Totaram's father works in the fields and faces financial troubles. Jay, Totaram's younger sister, who enjoys polishing her brass plate. And Moneylender is a person who tries to cheat Totaram's father with unfair loan terms. Now the quest begins. The story belongs to the days when the idea of going to school was new, especially in villages, India. Many people, like Totaram's parents, thought it was harmful to send their children to school. So, तो इस स्टोरी जो बिलोंग करती है उन दिनों से जब नया नया आइडिया था स्कूल जाने का. गांव के लोगों ज्यादातर स्कूल नहीं जाते थे, वहां पर स्कूल्स होते भी कम थे. तो ये नया नया जब स्कूल जाना लोगों ने शुरू करा तो वो आइडिया आया. तो बहुत से लोग ये मानते थे कि जैसे कि तोताराम के पेरेंट्स भी उनमें से एक थे कि बच्चों को स्कूल भेजना एक हार्मफुल चीज है. Something new had come to the village of Indora in India. The people sat in front of Totaram's house and talked about it until the moon rose and touched the tips of the bamboo branches with silver. अब इंडिया का एक विलेज था इंदौरा. वहां पर कुछ नया हुआ. जो लोग थे वो इकट्ठे होकर तोताराम के घर के बाहर बैठकर बात करने लगे जब तक कि रात नहीं हो गई. एंड टच द टिप्स ऑफ द बैम्बू ब्रांचेस में. और वहां पे बैम्बू की जो ब्रांचेस थी उसको टच किया. Totaram and his friend Bala, who should have gone to bed, crept behind the circle of grown-up people and listened. अब तोताराम और उसका फ्रेंड था बाला, वो दोनों सोने के लिए अपने बेड पर जा चुके थे. जब उन्होंने आवाजें सुनी तो वो उठ के आए और पीछे झाड़ियों में से उन्होंने लोग बाहर निकल के आए. जब लोगों के बीच में से उन्होंने पीछे से झांक कर सुना. They heard that for the first time a school teacher had come from the city and she was going to start a school in the village. तो जब लोग खड़े हुए थे उन्होंने आके बातें सुनी पीछे से, तो उन्हें समझ में आया कि एक नई टीचर जो है सिटी से, शहर से एक टीचर आया स्कूल का, जो यहाँ पर स्कूल खोलेगा और बच्चों को पढ़ाएगा. That day she had gone from house to house asking the village people to send their children to school. फिर वो जो टीचर आई थी वो जगह जगह उस गांव में हर घर में जा रही थी. हर घर में जो जहाँ जहाँ बच्चे थे उससे पूछ रही थी कि आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए. Todaram was afraid of this strange place called school. Then he heard his father say, I need my son in the fields. Totaram felt relieved. अब तोताराम जो है वो स्ट्रेंज लोगों से बहुत डरता था और इवन स्ट्रेंज प्लेस से डरता था जिसको कहते थे स्कूल, क्योंकि उसने कभी स्कूल नहीं देखा था. तो फिर उसने अपने फादर को बोलते सुना कि मेरे को अपना जो बेटा है मैं तो उससे अपने खेतों में काम करवाऊंगा, मुझे उसकी जरूरत है. तो
तोताराम को रिलैक्स फील हुआ कि मेरे को स्कूल नहीं जाना. But the next morning, the village crier beat the big drum down all the 7 roads of Indora to tell the people about the school. अब उसके बाद अगले दिन क्या होता है? अगले दिन विलेज के कुछ लोग ड्रम बीट करते हैं और ड्रम बीट बीट करके जैसे अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उन्हें बताते हैं कि स्कूल के बारे में कि स्कूल खुल रहा है, स्कूल में पढ़ाई होती है और स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराइए, आइए. तो वो एक ड्रम बीट कर रहे थे और अनाउंसमेंट कर रहे थे. Totaram watched the other boys and girls go into the new house just outside the village. He wished he knew what it was all about. अब तोताराम ने देखा कि और जो गांव के बॉयज गर्ल्स थे वो सब इकट्ठे होके वहां पर जा रहे थे उस विलेज से बाहर. तो उसने भी विश किया ताकि उसको पता चले कि वो क्या चीज हो रही है वहां पर. Later in the day, when he went to take the cattle into the fields, he looked through the walls of the schoolhouse. अब वो जो घर बनाया गया था, एक स्कूल बनाया गया था, एक घर कोई घर जैसा. तो बाद में वो जब खेतों में गया अपनी कैटल्स को लेकर, तो उसने वहां पर झांक कर देखा. The walls were made of bamboo sticks loosely woven together, and Totaram could peep through the holes. अब पहले जब वो कच्चे हाउस बनते, कच्चा हाउस बैम्बू से बना दिया, तो बैम्बू की स्टिक से और घास वगैरह यूज करके जो बना दिया था घर, तो उसमें से इजीली छेद हो जाता है और उसमें से आप देख सकते हो. तो तोताराम ने उन वॉल्स में से देखा जो बहुत ही लूजली वोवन थी और उन होल्स में से झांकने लगा कि क्या कर रहे हैं. Inside he saw a strange sight. The boys and girls were sitting on the floor in rows, and teacher was making strange marks on a big blackboard with a small white stick. तो अब जब उसने अंदर देखा तो बड़ा स्ट्रेंज माहौल उसको लगा. बच्चे बैठे हुए थे फ्लोर पर रोज बनाकर और टीचर उनको पढ़ा रही थी और ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था और ब्लैक बोर्ड पर टीचर अपनी वाइट लिख रही थी और वाइट स्टिक से. Totaram saw Bala and made faces at him, but Bala was interested in the marks and did not see him. तोताराम ने बाला को देखा. बाला उसका फ्रेंड था, वो उसको देखकर फेसेस बनाने लगा, लेकिन बाला इंटरेस्ट था अपने मार्क्स में, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया. School, thought Totaram, must be better than staying at home or looking after cows, or Bala would not like it much. So one day when his mother was busy, he slipped away and crept into the schoolroom. अब क्या हुआ? अब तोताराम ने सोचा स्कूल मस्ट बी बेटर देन स्टेइंग एट होम. उसने कहा कि मुझे लगता है घर में रहने से तो अच्छा है हम स्कूल चले जाएं. तो गाँव को देखना और खेतों में घूमना, इससे बेटर है हम क्यों ना स्कूल चले जाएं. तो एक दिन क्या हुआ, जब उसकी मदर बहुत ही काम में बिजी थी तो वो चुपचाप वहां से घर से निकल के स्कूल रूम में पहुंच गया. एट फर्स्ट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. द अदर चिल्ड्रन वर अहेड ऑफ हिम एंड इवन बाला कुड राइट हिज ओन नेम इन बिग लेटर्स. अब भाई पहले दिन कोई बच्चा स्कूल गया है जिसने कभी स्कूल नहीं देखा था, और बच्चे तो आगे का कर रहे थे. अब उसको नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना है. इवन उसका जो फ्रेंड बाला था वो अपना नाम भी लिखना सीख गया था. Totaram was ashamed that the others were so much wiser than he, decided to work hard and catch up with them. तोताराम ने जब देखा सब बच्चे मुझसे आगे निकल गए तो अपने आप पर उसे बहुत ही अशेम फील हो रही थी. तो उसने कहा अब मैं भी मेहनत करूंगा और मैं इनसे आगे निकलूंगा और इनके बराबर जल्दी से पहुंच जाऊंगा. Next day he went again and next. His mother thought he was out with the cows in the field as usual and she asked no questions. His father was always at work in style. अब वो तो रोज स्कूल जाने लगा. अब उसकी मदर को लगता था कि भाई वो तो फील्ड्स में जाता है काउस को लेके एज यूजुअल, तो कहीं और तो गया नहीं होगा, और उसके फादर भी उस टाइम पे घर पे नहीं होते, तो इनसे कोई पूछने वाला था ही नहीं. It took him a long time to learn to write. The teacher often called Totaram's letter the tracks of birds and made him do them again and again. After several months he could read and write a little. तो उसको थोड़ा टाइम लगा सीखने में, लिखने में, पढ़ने में. पर टीचर ने तोताराम को कहा, ऑफन कॉल्ड तोताराम लेटर द ट्रैक्स ऑफ बर्ड एंड मेड हिम डू देम अगेन एंड अगेन. तो वो जो गलती होती थी वो उसको बताती थी और उसको रिपीट करवाती थी. कुछ महीनों बाद वो अच्छे से पढ़ सकता था, अच्छे से लिख सकता था. वन डे व्हेन तोताराम रिटर्न होम आफ्टर स्कूल फाउंड हिज मदर रिटर्निंग अ लेटर ओवर एंड ओवर इन हर हैंड. अब एक दिन तोताराम जब घर आ रहा था स्कूल से तो उसकी मदर ने देखा कि वो एक लेटर को बार बार लिखने की कोशिश कर रहा है अपने हाथ से. The man who read and wrote all the letters for the people of Indora was away. So Totaram's mother sat looking at the letter. अब जो मैन जो रीड पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है सारे लेटर्स को, फॉर द पीपल ऑफ इंदौरा वाज अवे.
So Totaram's mother was looking at the letter. अब तोताराम की जो मदर थी वो लेटर को देख रही थी. Before Totaram thought of what he was doing, he said, "Give me your letter, mother, and I'll try to read it to you." तब उसने कहा कि आप मुझे ये, अब जो लेटर पढ़ता था वो लेटर पढ़ने वाला आदमी जो था वो आया ही नहीं था, वो भी दूर था. तब उसने बोला कि मदर मुझे ये चिट्ठी दे दो, ये लेटर दे दो, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. His mother was surprised. अब उसकी मदर चौंक गई. Since when have you learned read asked. उसने कहा तुमने कब सीख लिया पढ़ना. Totaram looked this way and that. He knew that the time had come to tell the truth. तोताराम ने कभी इधर देखा कभी उधर देखा. उसने सोचा कि अब तो टाइम आ गया, अब सच तो बताना ही पड़ेगा. He looked into her eyes and said, "I have been going every day to the school." फिर उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और उनको जवाब दिया कि मैं रोज स्कूल जा रहा था. While you thought I was out with the cows, I have been learning how to read and write. उसने कहा जब आपको लग रहा था कि मैं काउस को लेकर गया हूँ फील्ड में, उस टाइम पे मैं रोज स्कूल जाके वहाँ पढ़ना लिखना सीख रहा था. His mother asked, "And what did the cows do?" उसने कहा काउस क्या करती थी. And he said, "We took turns, and while half of us went to school, the others watched the cows. Then we watched the cows while others watched the turn at school." उसने कहा हम क्या करते थे, हम आधे जने स्कूल जाते थे और आधे काव को देखते थे, फिर आधे काव देख के वापस स्कूल आते थे और फिर हम में से आधे चले जाते थे. His mother said sadly, "You have become a great sorrow to us, and your father will be very angry." उसने कहा तुमने हमें बहुत बड़ा दुख दिया, तुम्हारे जो फादर है वो तुम्हें बहुत गुस्सा करेंगे. Then she remembered her letter and gave it to Totaram to read to her. फिर उसने तो याद आया कि उसे चिट्ठी पढ़नी थी, फिर चिट्ठी उसे तोताराम को दी कि वो पढ़े. And as he read, she wondered more and more. She said, "For years the writer has written and read my letters for me. Here my own son sits like a scholar and reads to his mother. Times are strange." तो जब उसके बाद जैसे वो पढ़ रहा था तो वो सोचने लगी और उसका दिमाग गया सोचने पर. तो उसने बोला कितने सालों से जो लेटर राइटर है जिसने लिखा है और वही हमारे लिए पढ़ता था लेटर को, अब ना अपना मेरा बेटा मेरे पास बैठकर इतना बड़ा हो गया है कि वही मेरे पास बैठकर मेरे लिए लेटर को पढ़ रहा है. She was pleased with the news in the letter. It said her sister had a new son, so she did not tell Totaram's father that the boy had disobeyed him and gone to school. अब लेटर में थी बड़ी गुड न्यूज. गुड न्यूज क्या थी कि उसकी बहन को बेटा हुआ था. तो इस गुड न्यूज को सुनने के बाद उसने अपने हस्बैंड को मीन्स उसके फादर को ये बात नहीं बताई कि वो स्कूल जाता था. Some days later, Totaram realized that his father was in trouble. He knew it because father sat silent and still for many years. अब कुछ दिन बीत गए. कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसके फादर किसी न किसी प्रॉब्लम में है. क्यों? क्योंकि उसे ऐसा पता लगा क्योंकि वो बहुत दिनों से साइलेंट और बहुत ही देर तक कुछ बोलना चालना उन्होंने बंद कर दिया. Totaram's little sister, Jay, knew it too. She ran to show him how her brass plate shone in the sunlight after she had polished it with ash, she said, "Go away, Jay." इवन उसकी जो छोटी बहन थी उसका नाम था जय, उसको भी ऐसा लगा था कि उसके फादर किसी प्रॉब्लम में है क्योंकि जब वो अपनी ब्रास की प्लेट दिखाने गई अपने फादर को कि देखो सनलाइट में कैसी लगती है, मैंने इसको पेंट किया है तो ऐश से पॉलिश करा, तो उसने उनको भी उसको बोला कि गो अवे, तुम यहाँ से जाओ. Totaram remembered that he had seen a strange man talking to his father. He had not liked the look of him. तो तोता राम ने को याद आया कि उसने एक स्ट्रेंज मैन को देखा था उसके फादर से बात करते हुए, तो उसको वो ठीक नहीं लगा था. He called Jay and they ran away to the big banyan tree to talk about it. The banyan tree had long roots that hung down till the ground. The brother and sister began to swing on the roots and forgot to talk about their father's troubles. अब उसने अपनी सिस्टर को बुलाया जय को और दोनों एक बड़े से बनियन ट्री के पास चले गए बात करने. अब बनियन ट्री की जो जड़ें होती हैं वो रूट्स होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, तो वो नीचे हंग कर जाती हैं, ग्राउंड तक टच करती हैं. अब वो दोनों भाई बहन जो है झूला झूलने लगे, वही रूट्स पर लटक लटक के झूला झूलने लगे और बात करना भूल ही गए अपने फादर की प्रॉब्लम पे. As they were swinging, Jay looked up and said, "Here comes our father and that strange man. Let's hide." तो जब वो झूला झूलते झूलते उन्होंने देखा कि उसके फादर उस आदमी के साथ आ रहे हैं, तो हम छुप जाते हैं और देखते हैं क्या होता है. They climbed up the roots and lay hiding on the branches above. तो उन रूट्स की हेल्प से वो ऊपर ट्री पर चढ़ गए और वहां छुप गए. The two men came and sat under the tree. Totaram held his breath. अब दोनों आके उस पेड़ के नीचे बैठ गए, वो एकदम शांत हो गए, सांस रोके.
बात सुनने के लिए। The strange man showed a sheet of paper to Totaram's father and said, "All that you have to do is to make a thumb here and I will lend you the 50 rupees you need." अब उसने उनकी बातें सुनी। उसने उसे एक शीट दिखाई, एक पेपर दिखाई और उसने बोला कि तुम्हें बस यहाँ पर थंब इम्प्रेशन करना है और उसके बाद तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं करना, फिर मैं इस पेपर के बदले तुम्हें 50 रुपीज दे दूंगा। व्हाट डज द पेपर से? आस्क्ड तोताराम फादर। अब तोताराम के फादर ने बोला कि ऐसा क्या लिखा है? Strange man replied, "It says that in return for the 50 rupees I am lending you, you will pay me 2 rupees a month until you can pay back all the money I lend you." उसने कहा इन पेपर्स में लिखा है कि मैं तुम्हें 50 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे हर महीने 2 रुपए देने पड़ेंगे। 2 रुपीज दोगे तो मुझे हर मंथ, जब तक तुम मेरा पूरा पैसा जो मैंने तुम्हें दिया उसे नहीं लौटा देते। तोताराम could see what was written on the paper from where he lay. अब तोताराम वो देख पा रहा था कि उस पेपर में क्या लिखा है। He jumped down from the tree excitedly and cried out, "Father, father, it's not true." अब वो पेड़ पे से कूद के एकदम चिल्लाया, "फादर, फादर, ये सही नहीं है। ये जो बता रहा है, ये गलत है." Both men looked at him startled. अब दोनों एकदम से चौंक गए और उसे देखने लगे। The money lender said angrily, "Your son can't interfere with our business." अब मनी लेंडर जोर से चिल्लाया कि तुम्हारा बेटा तो इंटरफेयर नहीं कर सकता हमारी बात में। Father turned to Totaram. "Tota, run home. This is the talk of grown-up people." ने कहा तुम घर जाओ और ये हम बड़े लोगों की बात है, आपका कोई काम नहीं है। But Totaram said, "I have been to school and I have learned to read." उसने कहा मैं स्कूल गया हूँ, जाता था और जा रहा हूँ और मैंने वहां पर पढ़ना लिखना सीख लिया है, इसलिए मुझे पता है। And this paper says that in return for 100 rupees, you agree to pay an interest of 5 rupees a month until you can pay back all the money he lends you. I have heard the teacher talk to the older boys about interest, and this is 10 times too much. तो उसने कहा कि इस पेपर में लिखा है कि मैं तुम्हें 100 रुपीज दे रहा हूँ और 100 रुपीज के बदले तुमसे इंटरेस्ट ले रहा हूँ 5 रुपीज, और हर महीने तुम्हें 5 रुपीज इंटरेस्ट मुझे पे करना है जब तक तुम मेरा पूरा पैसा नहीं लौटा। तो उसने कहा मैंने जब बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने इंटरेस्ट के बारे में उनसे सुना था, इसलिए मुझे पता है, और ये कम से कम भी 10 गुना ज्यादा है। Totaram's father was very angry, for he could see by the look on the money lender's face that Totaram's words were true. He was about to be cheated. जब उसने मनी लेंडर को देखा कि वो एकदम पहचान लिया उसके फेस से कि वो मेरे साथ चीट करने की कोशिश कर रहा था। The money lender slunk away. Totaram's father pulled Jay down and they walked home together. तो मनी लेंडर एकदम भाग गया, तोताराम ने जय को भी नीचे उतारा, उसे दोनों सब घर चले गए। His father said, "I am sorry you have deceived me, Tota, but because I want you to be honest. But you have helped me and saved me many months' earning. I have decided that you and Jay must go to school. Perhaps school's not such a bad thing after all." उसने कहा कि मैंने भले ही तुम पर गुस्सा किया कि तुमने बीच में आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचा ली, मेरा पैसा बचा लिया, इतने महीनों की अर्निंग्स बचा ली। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों स्कूल जाओ, क्योंकि स्कूल अच्छी जगह होती है, बुरी नहीं। Fun fact, India has over 1.5 million schools, ranging from small village schools to large urban institutions, serving millions of students across the country. इंडिया में 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं जो चल रहे हैं, छोटे विलेज के स्कूल्स को इंक्लूड करके, अर्बन एरियाज के स्कूल्स तक, और जो बहुत ही मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाई एजुकेशन प्रोवाइड करा है। Now let's do the vocabulary word. Village crier, someone whose job in the past was to talk around a village shouting important news announcement. Peep, to secretly look at something for a short time through a hole. Made faces, had an expression on his face which showed that he did not like school. Interest, a sum of money charged for the money that is loaned. And slunk away, slipped away without being noticed. Now let us assess, take the correct answer. What motivated Totaram to start attending school secretly? तो तोताराम को क्या चीज ने मोटिवेट किया तो उसने सीक्रेटली स्कूल अटेंड करना शुरू कर दिया? Pala's enthusiasm for learning. Who initially opposed the idea of Totaram going to school? तो उसके स्कूल जाने के आइडिया को किसने अपोज किया था? तोताराम की मदर ने। Who did Totaram reveal his secret about attending school to first? तो तोताराम ने अपना सीक्रेट स्कूल का सबसे पहले किससे बताया? अपनी मदर को। What does the money lender try to do to Totaram's father? Money lender क्या करना चाहता था? Cheat him with unfair terms.
Now let's do the true and false. Totaram was initially excited about attending the new school in the village. False. Totaram learned to read and write quickly without any difficulties. False. Totaram's mother was pleased about her son's secret schooling. True. Totaram's honesty and knowledge helped his family avoid a bad deal. True. Now let us do the fill in the blanks. The village crier beat the big drum to tell everyone about the school. स्कूल के बारे में बताने लगे ड्रम बीट कर. Totaram saw Bala in school and made faces at him, but Bala was interested in the dash on the blackboard, that was marks. Totaram's father was troubled by the unfair deal proposed by the moneylender. Father decided that Totaram and Jay must go to the dash after the incident. They must go to school. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video for the next chapter. Then bye bye. Take care.